Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where I hope my last lecture for issue of shares made your life a little bit easier with the technique of remembering the journal entries. आज मैं उसी टेक्निक को दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि वो टेक्निक की वजह से बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कौन से टेक्निक की बात कर रहे हैं सर, पिछली बार क्या हुआ था, तो मैं ये बोलूँगा रिवाइंड तो नहीं, बट पिछले लेक्चर को आप डेफिनेटली देख लीजिए, क्योंकि आने वाले करीबन 20 या 25 लेक्चर पिछली बार के कॉन्सेप्ट और टेक्निक के ऊपर डिपेंड करते हैं. ये जो लंबा लिस्ट है जर्नल एंट्रीज़ का, इस जर्नल एंट्रीज़ को लिस्ट को मैंने कोशिश की अपने तरीके से आपको सिखाने के लिए, जिसके लिए शाहरुख खान जी ने हमारी बड़ी मदद की है, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया मांगना किस तरह है और जब मिल जाता है तो जेब में उसे डालना किस तरह है. और इसी शाहरुख खान को जब हम हमारे बैलेंस शीट में सुपर इम्पोज कर देते हैं, मतलब उनको ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारी राह हमको दिखाता है. वो बोलता है हमें डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, और हमें जब पैसे मिल जाए तो हैंडल किस तरह करना है. आज के इस ही टेक्निक को, जिसको कहा जाता है आस्क एंड यू शैल रिसीव, हम आज के हमारे इकलौते सम में इस्तेमाल करेंगे. दिस इज व्हाट द सम सेज. इट इज़ अ टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाट इट सेज. गजानन लिमिटेड इशूड. गजानन लिमिटेड एक कंपनी है जिसे 60,000 इक्विटी शेयर्स जो 10 रुपये के हैं बेचना था. 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का और 2 रुपया फाइनल कॉल का. तो 4 स्टेजेस होते हैं जब शेयर्स को बेचे जाते हैं और पैसा लिया जाता है. ये 4 स्टेजेस में हर स्टेज में 2 एंट्री आते हैं. 4 गुना 2, 4 गुना 2, 8 आता है. तो 8 एंट्रीज आपको इसमें से जनरेट करने हैं, पैदा करने हैं. कैसे आप पैदा करोगे? चलिए, पहले तो इस तरीके का बैलेंस शीट आप बनाओगे, और इस बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है. इसे ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होगा, एग्जामिनर को इसे देखने में भी नहीं होगा. एसेट में डेबिट लिख लीजिए, क्योंकि एसेट डेबिट होते हैं. उसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. उस तरफ पे इक्विटी, शेयर कैपिटल. यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे मिलने हैं? 60,000 इंटू 2, और अलॉटमेंट के टाइम पे इंटू 3, फर्स्ट कॉल के टाइम पे इंटू 3, फाइनल कॉल पे इंटू 2. ये पूरा आप
रेडी रख लीजिए। जैसे ही ये रेडी होता है, इसमें से आपको एप्लीकेशन के 2 एंट्री, अलॉटमेंट के 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के 2 एंट्री, फाइनल कॉल के 2 एंट्री लिखने हैं। कैसे? जो हमारी टेक्निक पिछली बार आपको बताई गई थी, वो टेक्निक से आपको क्या याद रखना था कि हमें आस्क एंड रिसीव, आस्क एंड रिसीव, आस्क एंड रिसीव करना है। बट एट द वेरी एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर मैंने ये बताया था, एप्लीकेशन के टाइम पे बाजी पलट जाती है और आपको पहले रिसीव बाद में आस्क करना है। तो पहले तो हम रिसीव की एंट्री पास करेंगे, वो कुछ इस तरह दिखता है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे बैंक में गए। बैंक में कभी कंपनी में कैश आपको लिखना नहीं है, क्योंकि कंपनी के कायदे कानून ऐसे हैं कि वो कैश में लेन देन अलाउ नहीं करती है, क्योंकि काफ़ी घपला हो जाता है। सारी चीज़ें बैंक में होती है, तो बैंक में पहले पैसे डालो। बैंक डेबिट और एप्लीकेशन क्रेडिट, इसको आप जर्नल एंट्री में किस तरीके से लिखोगे? कुछ इस तरह जी। एप्लीकेशन रिसीव, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो मैं एप्लीकेशन रिसीव लिख रहा हूँ वो रफ वर्क है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि मुझे ये रिसीव आस्क आपके दिमाग में फिट करना है। जैसे ही फिट हो जाए मैं नरेशन लिखना स्टार्ट कर दूंगा, और जैसे ही मैं नरेशन लिखूं मैं रिसीव आस्क लिखना बंद कर दूंगा। ये फर्स्ट एंट्री है एप्लीकेशन का। इसके बाद में देखिए जी, इसके बाद में आपको आस्क करना पड़ता है। एप्लीकेशन का आस्क वो किस तरह होता है जी? हाथ बढ़ाने हैं, हाथ बढ़ाते हैं तो आपको डायरेक्शन, दिशा मिल जाती है शाहरुख खान जी के हाथों से कि एप्लीकेशन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। हर स्टेज 2 जर्नल एंट्री में बटा हुआ है, और यही 2 जर्नल एंट्री मैंने पिछली बार किए थे। यही 2 एंट्री, जर्नल एंट्री हर स्टेज का, आज भी मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। रफ वर्क को ड्रॉ करना और रफ वर्क में ये वाला और जेब का एक्शन करना या सोचना will make your answer and your life in this particular chapter extremely simple and easy। अगला क्या है? अलॉटमेंट का टाइम आया। अलॉटमेंट में क्या, देखिए अभी से गाड़ी आस्क रिसीव आस्क रिसीव आस्क रिसीव, पहले में उल्टी गाड़ी होती है। अच्छा जी, अलॉटमेंट में हम आस्क कैसे करें? अपने हाथों को बढ़ाओ। तो अलॉटमेंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, 1,80,000 अलॉटमेंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 1,80,000। हाँ जी, वो लिख लिया। इक्विटी शेयर लिखना कंपलसरी है, अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो हम प्रेफरेंस शेयर लिख लेंगे। ओके जी, इसके बाद क्या जी? आस्क किया तो रिसीव करोगे। ओके, ऊपर वाले से आशीष मांगोगे तो आशीष पाओगे, सीधी सी बात है। अच्छा जी, पैसे आ गए तो अब मैं क्या करूँ? अरे अपने जेब में डाल दो। हाँ जी, हमारे जेब में चले गए। वेल, ये जेब का नाम क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट क्रेडिट, क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राइट नाउ मैं आपसे यही विनती कर सकता हूँ, टेक्निक पे ध्यान दें। जब टेक्निक आपको आ जाता है तो मोटर बाइक कोई भी चलाओ, बड़े आसानी से आप चला लोगे और बड़े मज़े लेकर उस राइड को आप कंप्लीट करोगे। अब आया फर्स्ट कॉल का समय। क्या करूँ? पहले आस्क करो। हाँ जी, हाथ बढ़ाकर आस्क कर लिए। ये कॉल डेबिट, वो वाला कैपिटल क्रेडिट। ये कॉल डेबिट, वो वाला कैपिटल क्रेडिट। तो जी वो भी कर लेते हैं। इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मांगने का काम हो गया, हाँ तो फिर मिलने का काम कर लो ना, जेब में पैसे डाल दो। हाँ जी, देखो डाल दिए। बैंक अकाउंट डेबिट, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज हाउ दिस चैप्टर गोज अहेड। रिपीट रिपीट रिपीट। और अगर आपने कोई डांस फॉर्म, जाइव, कोई वेस्टर्न डांस फॉर्म अच्छा सीखा होगा तो जो ट्रेनर रहते हैं ना, वो भी वही कहते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2। मैं नहीं हूँ, बट मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। रिपीट 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 करने को बोलते हैं। एक पूरे गाने में सारे लफ्ज़ नए नहीं होते, कोरस रिपीट होते रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वो रिपीट हो रहा है। आखिर में आप क्या करोगे जी? फाइनल कॉल का
हम आस्क करेंगे कर लो जी, फाइनल कॉल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। आसानी से हो गया जी। पिछली बार जब मैंने ये आपको सिखाया था, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था द लास्ट टाइम, काफ़ी समय लग गया था मुझे ये समझाने में, क्योंकि मुझे बड़े धीमे धीमे ये समझाना पड़ रहा था। बट राइट नाउ मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आपको टेक्निक समझ आ गया है कि ये आस्क कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं। अच्छा, फाइनल कॉल का आस्क तो कर लिया, अब रिसीव कैसे करूँ? अरे रिसीव मिल गया, जेब में अपने पैसे डाल दो। तो कुछ इस प्रकार वो होता है। बैंक में पैसे चले गए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, ये हमें करना है जो इस क्वेश्चन को कंप्लीटली खत्म समाप्त कर देगा। हियर गोज आर लास्ट जर्नल एंट्री एंड ये चुटकी बजा के हमारा प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गया। इसी आधार पर, इसी बेस पर आने वाले काफ़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं कि 4 स्टेजेस आपको याद रखने हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल, बराबर। उसके बाद में हर स्टेज में आस्क रिसीव, पहले वाले में रिसीव आस्क होता है, बाद में आस्क रिसीव का चक्कर चलता है। बैलेंस शीट को रफ वर्क में बनाना और उसको पहले से रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका आधी जंग, आधा टेंशन निकल जाता है और फिर ये एंट्रीज आपको लिखने पड़ते हैं। आज के और पिछले बार के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको टेक्निक समझाया। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको टेक्निक के साथ में नरेशन भी दूंगा, क्योंकि हर पड़ाव में कुछ ना कुछ तो नया आपको सीखना ही है। आई होप आज आप इसका सल्यूशन और टेक्निक को दोबारा सीख चुके हो। अगर आपको ये सिंपल लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, अपने दुश्मनों के साथ में भी इस लेक्चर को शेयर करें। अगर आप हमारे पुराने मित्र हो, शेयरिंग हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब बटन को और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं। अगर आपकी कोई तकरार है, कोई रिक्वेस्ट है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स का उपयोग ज़रूर करें। मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार ज़रूर करें। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूं, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।